ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। कोट पराध हमारे खंडो अनेक विधि समझावो। हम अज्ञान अल्प मत थोड़ी तुम आपन बिरद रखाओ। तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहेले। जी राखो राखण हार दयाला नानक करके गोले। राखो राखण हार दयाला नानक करके गोले। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारै। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै। परतख गुरु निस्तारे। सतगुर की जिसनू मत आवे सो सतगुर माए समाना। ए बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਲੜੀਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਸੰਪੂਰਤਾ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਰਸ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਰਸ ਆਪ ਜੀ 'ਤੇ ਸਦਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਓ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫੇਰ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਾ ਚੰਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਨੇ ਪਰ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਗਿਆ ਆਇਆ, ਖਾਲੀ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬਸ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੇ ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੇ। निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमक सिमरत जित छुटै।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਸਿਰਫ ਐਜ਼ ਏ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਈਆਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਲਾਗੋ ਭਾਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਖ ਨਾ ਉਪਜੇ ਭਾਵੇਂ 100 ਗੇੜਾ ਆਵੋ ਜਾਓ। ਭਾਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 100 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਓ ਜਾਵੋ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਗੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਦੇ ਨੇ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ, ਵਿਨ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਾਏ ਕਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਤੀਰਥੇ ਨਹਾਉਣਾ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਾਂ ਕਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ? ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ, ਵਿਨ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਾਏ ਕਰੀ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੀਰਥ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਅਰ ਦਾਨ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਅਰ ਦਾਨ ਕਰ ਮਨ ਮੇ ਧਰੇ ਗੁਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਲ ਜਾਤ ਤਹਿ ਜਿਉ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਰਥ ਬਰਤਾਂ ਦਾਨ ਇਹ ਜੋ ਕੰਮ ਤੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾਥੀ, ਹਾਥੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਨਹਾ ਕੇ ਆਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਣ ਵਕਤ ਨਾ ਸੁੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਘੱਟਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹਾਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਘੱਟਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਭਾਵ ਫਿਰ ਗੰਦੇ ਦਾ ਗੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਜੈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਫੂਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਜਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਨਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਰਕੇ। ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਪਾਠ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਚੀਦਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਨਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹਲੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦਇਆ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ, ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਨਾ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਲਤੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਮੈਂ ਤੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਾਂ? ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵਾਹ ਚੰਗਾ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਕੜ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਈ ਡਾਊਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪੰਥ ਹੀ ਹਾਂ।
क्योंकि असी हाँ पहला सिख। जिस दिन मैं कह दिता कि मैं सिख लिया, समझो मेरी मौत है। ध्यान देना, असी आखिरी समय तक सीखना है। सिख की डेफिनेशन की है, उन्हें लर्न करना ही करना है, उन्हें हमेशा ही सीखना है। जिस दिन वो मन में आ गया कि मैं सिखिया गया वहाँ, समझो कि उसकी मौत हो गई है। तो गुरु साहब सानू संगत राही साढ़े कई डाउट्स कढ़ देंदे ने, कई भुलेखे कढ़ देंदे ने। बहुती संगत नूं मर्यादा का पता हुंदा है, पर वो सुनन नाल वो ताजियां हो जांदियां ने, और जिन्हां नूं बिल्कुल नहीं पता हुंदा उन्हां दा विच भला हो जाता है। तो आओ मन बिरती नूं इकागर करके असी सब तो पहला जो सहज पाठ अखंड पाठ साहब की सेवा निभाउंदे ने, जिहड़े निभाउंदे ने बहुत मुबारक है। जिहड़े नहीं निभाउंदे, अज दी विचार गुरु साहब बख्शिश करके वो सुन के ते गुरु की चरनी जरूर लग जाओ। देखो असी छोटे हुंदे सन, महाराज की कृपा नाल 8-10 साल की उम्र सी, पहलां दी चरनी लगना ते हुण दी चरनी लगन दा बहुत फर्क है। सानू 5 ग्रंथी 10 ग्रंथी पढ़ाई जाती सी। देखो अज कई बच्चों को पता ही नहीं 5 ग्रंथी की होंदी है, 10 ग्रंथी की होंदी है। पुरातन ये गुटके साहब ने जिहदे विच जपजी साहब की बाणी, शब्द हजारे, सिद्ध गोष्ठ, 12 माह, लावां, बड़ा कुछ तुहानू 5 ग्रंथी मिले, फिर 10 ग्रंथी है। तो असी जदों चरनी लगन जाते सन तो सानू कहते सन 5 ग्रंथी ते 10 ग्रंथी का पाठ किया है? असी कहते नहीं, कहते पहले करके आओ। हुण कितनी फैसिलिटी है, हुण तो तुहानू भाई साहब कोल जाओ, तुहानू चरनी ला देंदे ने जी, इशनान किया है, केसी इशनान करके आए हो, देग तैयार है, आनंद साहब का पाठ करके तुहानू बाबा जी की चरनी ला देंदे। चलो अच्छी गल है, लेकिन कुछ पुरातन मर्यादा हुंदियां सन, वो साडे तो थोड़ी जिहियां ना दूर होंदी जा रही ने। तो सब तो पहला असी चरनी लगने हाँ, जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते हैं। बिना चरनी लगे गुरु ग्रंथ साहब के ताबीए ते कोई भी ना बैठे करे। ये बड़ी बड़ी प्यार सहित बेनती है। और जदों भी कोशिश करो, जे तुहाडे कोल 5 ग्रंथी 10 ग्रंथी है, एक बारी रीड करके पढ़ के, क्योंकि उहदे विच वो सरल बाणियां ने, जदों गुरु ग्रंथ साहब के पाठ करोगे तुहानू औखियाई नहीं होएगी। सो आओ, उस तो बाद मैं ये जरूर कहना चाहांगा, अपनी लाइफ विच एवरी टाइम सहज पाठ की सेवा चलती रहे तुहाडी, जदों तक साडे श्वास ने। क्योंकि इस करके मैं कह रहा हाँ कि सहज पाठ के नाल रोज़ गुरु साहब के दर्शन होणगे, सब तो वड्डी गल है। भावें 4 अंक करो, भावें 10 करो, समा है 20 भी करो, 50 भी करो, वो अच्छी गल है, बट कुछ ना कुछ महाराज के दर्शन जरूर कर लो। जिन्हां दे घरां दे विच गुरु ग्रंथ साहब ने मुबारक, ये अच्छी गल है। जिन्हां दी अकोमोडेशन टाइट है, सैपरेट रूम नहीं ने, वो भी पोथियां सैंची साहब रख सकते हैं, भावें 2 भाग वाली, 4 वाली, ते अर्थां दे विच 10 भाग वाली भी है। ध्यान देना, सारी गल आप नोट कर सकते हो, जो जो गल्लां दस रहे। ते सैंचियां नूं तुसी बड़े प्यार सहित रुमाले विच लपेट के रखना है। देखो ध्यान देना, इहदे वास्ते चंदोया साहब की कोई लोड़ नहीं है। कोई चंगा जिहा घर भी छोटा जिहा, भावें तुसी बैडरूम दे विच भी रख सकते हो, क्योंकि काम अजकल बहुत घट छोटे छोटे रूम होंदे ने, ते जिहदे करके मतलब कि असी गुरु महाराज दे वास्ते नहीं रूम हुंदा। चलो तुसी रखना चाहते हो तो तुसी अपने रूम विच भी रख सकते हो। अगर किसी नूं भी कोई ऐसी गल है तो गुरुद्वारा साहब जाके भी पाठ कर सकता है। चलो एक गल तो यह हो गई, ये उत्ते चंदोआ नहीं लगाना। देखो अक्सर सवाल आता है कि जिस तरह गुरु ग्रंथ साहब महाराज के, क्योंकि जिहड़ा चंदोआ है ना, वो संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहब ते लगाना है। ये सैंचियां ने, पोथी है, इस करके इन्हां दे उत्ते कदी भी चंदोआ नहीं लगाना। हाँ, सत्कार दे नाल रुमाला साहब ते लपेट होवे ते उहदे विच लपेट के रखो।
ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੈਂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੈਂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਤ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਪਾਠ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਚਰਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਲੋਂ ਦੇਖ ਕਰਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ 5 ਪਾਠ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਚੁਪਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕਰੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਓ। ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਸੰਪੂਰਨਤਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ 9ਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਪਾਠ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਈ ਘਰ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਜਾਗਤੀ ਜੋਤ ਨੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਲਾ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਦਰਮਾਂਦੇ ਠਾਂਡੇ ਦਰਬਾਰ, ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇਹੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਆਪ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੁਮਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਰੁਮਾਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਤਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਵੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੁਛ ਮਰਿਆਦਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਿਹਾ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ। ਗੁਰ ਕਾ ਕਿਹਾ, ਗੁਰ ਕੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੇਟਾ, ਜੋ ਗੁਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੁਰ ਕਿਹਾ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਓ, ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹੇ ਤਾਵੋ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਵੀਨੀ,
ਉਹ ਪੋਤਾ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ? ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲਾਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਲਪੇਟ ਹੈ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਹਟਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਇੱਧਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਅੰਗ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਫਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੇਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੱਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ, ਅੰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅੰਗ, ਅੰਗ ਮੀਨਸ ਪਾਰਟ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਗ, ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਅੰਗ, ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ, ਐਵੇਂ ਅੰਗ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿਤਨੇ ਅੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅੰਗ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪਿਛਲੇ ਅੰਗ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਅੰਗ ਪਰਤਾ ਕੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਥੱਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਦਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਤੇ ਵੀ ਅੰਗ ਨੇ, ਲੈਫਟ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਲੈਫਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਗਰ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਅੰਗ ਪਰਤਾ ਕੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਆਰੰਭ ਉੱਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਡੀ, ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਰਸਨਾ, ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ, ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਉੱਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੀ ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਪਰਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਜੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਜੋ ਦਾਸ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਂਝ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਾਸ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਜਾਂ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਰਬ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਏਕ ਰੂਪ ਲੀਲ ਲਾਓ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਹਰ ਪੈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ, ਹਾਥ ਖਾਤ ਪੀਰ ਖੇਲਤ ਹਸਤ, ਭਰਮੇ ਜਨਮ ਅਨੇਕ, ਭਵਜਲ ਤੇ ਕਾਢੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਟੇਕ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਰਾਧਿਆ, ਜਾਂ ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ, ਨਿਰਗੁਣ ਆ ਰੇ ਆਣਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਭਾਵ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਪਾਸ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੋ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਚੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਾਠ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਟੀਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜੇ ਧਾਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਸੈਂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਲੇਇੰਗ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕਾਰਡ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਕਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਰਾ, ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਲਗੈਨੀ ਕਰਕੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਾਬੀਏ 'ਤੇ ਬੈਠੀਦਾ ਅਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਹੀ ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 1-2 ਕਾਗਜ਼ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਸਫਾ ਨੋਟ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਅੰਗ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਚਲੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕੱਢ ਲਏ ਦੋਨੋਂ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਸ਼ ਦਾ ਪੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕੰਮ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,
पर ना समझी करके असी पापां दा भार लै रहे हैं। नहीं गुरमुखो प्यारे, इस तरह नहीं करना। फिर ध्यान देना, जदों पाठ की समाप्ति होवे, जो जिस तरह आप जी का तो पाठ करते ही हो, तुहाडी ते नॉलेज है, लैफ्ट हैंड से जिहड़ा शब्द उत्तों की समाप्ति होंदी है ना, उत्थे समाप्ति करे बंदा। भावें कोई भी शब्द है पूरा, उत्थे समाप्ति करके अगली सेवा वास्ते बेशक एक डायरी बनाओ। डायरी बना के उहदे उत्ते इन्ना लिख दो, धनासरी महला पंजवां जिसका तन मन, बस भावें इन्ना भी लिख दो ना, इट मीनस कि सानू पता लग जाएगा कि अगले दिन करना लैफ्ट हैंड तो में। ये मर्यादा ने साध संगत। दास कोई गल अपने को ना, मेरी इन्नी बुद्धि है कि मैं अपने को कोई गल सांझ कर सकां, संगत विचों सुन के गुरु मर्यादा पढ़ के मैं आप जी नाल सांझ कर रहा हाँ। आप जी ने कोई निशानी किसी कागज़ की, किसी पत्रे की, किसी उत्ते भी नहीं रखनी, किसी अंग ते भी नहीं महाराज ते रखनी। और उस तो बाद फिर जिहड़ा पाठ है डायरी बनाओ, जे उहदे उत्ते धागा है तो धागा रख सकते हो, तो जिथों समाप्ति होनी है तो उत्थे फिर हुण भावें आप जी के पाठ चल रहे हैं सहज पाठ। वैसे सहज का मतलब पता की हुंदा है? सहजे सहजे, बिल्कुल कोई ऐ नहीं भाजड़ च नहीं। तो महाराज तो कहते ने हर का बिलोवना बिलोवो मेरे भाई, सहज बिलोवो जैसे तत ना जाई। जिस तरह मक्खन भैणा तुसीं रिड़कदियां ना, स्वानियां बैठी हो तो मक्खन रिड़कदियां हो, जे उन्हें तेजी नाल रिड़कोगे कुछ पल्ले नहीं पैना। सहज, सहज का मतलब ही सहज पाठ है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਵੀਰ जी ਨੂੰ भी बेनती करांगा कि कोई टाइम का ना रखिया करो। कोई संगत 5 अंक करे, कोई 15 करे, कोई 20 करे, क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ रस लैके ਅਸੀਂ पाठ करना है। कोई भाजड़ नहीं पानी कि अगला पाठ रखना है, घट रख लो। साल विच 20 पाठ ने ना, 18 पा लो। तुसीं कहोगे वीर जी घट पाठां वास्ते नहीं, ਜਿਹੜਾ भी बाणी पढ़े भावें वो 10 अंक कर रहा है, भावें 5 कर रहा है, तो भावें 20 कर रहा है, जिन्नी भी सेवा अद्धे घंटे घंटे की मैनू नहीं इस बारे पता, बट मैं यही कहांगा कि सहज पाठ का मतलब है कि सहज भी लोगो साडे अंदर वो सहज च पढ़ के तो सहज अंदर आ जाए, ना भी समझ आवे पर हौली हौली तुसीं पढ़ोगे ना, तुहानू बाणी दे अर्थ आपे ही सामने आते जाणगे। मैं बड़े ध्यान नाल इस गल नूं तवज्जो दे रहा कि असी कहने कि मैं अगली वारी देनी है तो वह कहेगा कि 15 अंक नहीं होए तो मैनू की कहेगा। नहीं 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 नहीं, मैं कहना कोई मेरी भैन 2 अंक भी कर ले ना अद्धे घंटे विच। मैं तो ऐसे गुरमुखां दे दर्शन किए ने, हालांकि उन्होंने मना किया है पर मैं नाम नहीं लै रहा उन्हों का। वो पाठ ते बह जाते सी ना, 1 घंटे च 1 अंक ही करते सन, तो अखां विचों अथरू आते सन। क्यों? उन्होंने पाठ की समझ आ गई। वो रस लैके, जिस तरह भवरा फुलों के विच जाता है ना तो रस खिंचता है ना, वो इन्ना मस्त हो जाता है ना, जदों शाम नूं पंखड़ियां बंद होंदियां ने ना फुल दियां, वो भुल जाता है, उहदी विचे ही मौत हो जाती है। सवेरे जदों फुल वाले आते हैं तो भवरे दियां, भवरा ना जिहड़ा फुल राती अपनियां पंखड़ियां बंद करता है ना, तो भवरा इन्ना मस्त होया हुंदा है ना, उन्हें भुल जाता है कि मेरी मौत आ गई है। जिस तरह मच्छर हुंदा है, भुल जाता है, वो लाट के आले दुआले घूमता रहता है, पर उन्होंने ऐ नहीं पता, उन्होंने लाइट बड़ी चंगी लगती है, पर वो मौत हो जाती है जब मोमबत्ती के बिल्कुल आग की लाट से आता है। तो ऐसा साढ़े अंदर सहज करना है, कोई भाजड़ ना करो। मैं खीमा मंग लाँगा वीर जी को पहला कि कोई असी ऐ ना रखो कि 8 दिन ही भोग पाना है, 10 दिन। सहज मीन सहज, कोई भी वीर भैन तेजी ना करे, 8 का 10 दिन च पा लो। गुरु साहब कहते हैं जिहड़ी कोई गल समझ के पढ़े, क्योंकि मैं पहला पंक्ति की लगाई सी, सतगुर की प्रतीत ना आईयां। प्रतीत की हुंदा है? प्यार। जे साडे अंदर प्यार नहीं आया ना, शब्द ना लागो भाओ, जे साडा शब्द दे नाल प्यार नहीं लग्या तो महाराज की कहते हैं गुरु अमरदास, उसनू सुख ना उपजे भावें 100 गेड़ा आवो जाओ। जे साडे अंदर बाणी पढ़ के प्यार नहीं आया,
ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। मैं एक ਵੱਡਾ मैं कहना नहीं चाहिए बई मैनू 10 अंक करने ने, ये कर्म कांड की होंगे ने? कर्म कांड होंगे मैं नंगी पैरी जाना, बस उन्होंने नंगी पैरी का पता है। आके की होंदा है, उन्होंने एक होर हंकार हो जाता कि मैं सब जोड़े पा के गए ने, मैं नंगी पैरी गया हाँ। गुरु साहब कहते हैं मैं तेनों कर्म कांडी नहीं बनाना, तू शरदा प्रेम भावना नाल काम करना है। मैं तां जिक्र कर रहा कि मैनू अक्सर असी विचरने हाँ तो कई भाजड़ च करते हैं। सो पाठ नूं सहज च करना है। भावें मेरे वीर जी नूं मैं माफ़ी मंगांगा, मेरी गल दा गुस्सा ना करना, मैं गुरु मर्यादा अनुसार कर रहा। बड़ा रस लैके ये तुसी बड़ा वड्डा यज्ञ कर रहे हो, इस तो तपा सिर तप है यह जिहड़ा काम कर रहे हो। पर मैं कहना उहदे विचों कुछ गल्लां अज जे सामने आ रही ने तो उहदा असीं रस लईए। रस नानक नाम महारस मीठा, अन दिन मन तन पीवा। मैं रोज़ इसनूं पीवां, पर किवें? रस लैके। तो एक असी गल ये भी समझण की कोशिश की है कि सहज पाठ नूं असी सहज नाल करना है, किसी भाजड़ च नहीं करना। असी कुछ मकाम ते नहीं पहुँचना कि 25-30 पाठ असी करके तो कोई झंडा लगाना है। नहीं साध संगत, असी झंडा नहीं लगाना, असी गुरु की खुशी लैनी। गुरु साहब कहते हैं 5 पाठां की बजाय एक कर लै, पर समझ के कर। तो अगला जिहड़ा विषय है, सवाल आते ने मोबाइल तो पाठ बिल्कुल नहीं करना, कदाचित नहीं करना। ये गल नोट कर लो, पाठ मोबाइल तो नहीं करना। साडा मोबाइल दे अंदर बहुत चीज़ां गलत भी ने, मैं डिसक्लोज नहीं कर रहा। असी कई बारी वाशरूम भी लै जाने हैं, होर भी कई जगह ते जाते हैं, साडे जूठे हाथ भी लगते हैं। आप जी पाठ कर रहे हो, विच काल आ गई, गुरबाणी की बेदबी कर रहे हैं। जेड़ा भी कोई वीर भैन जे कर रहा है तो मैं शनिवार उन्हां दे पैर फड़ के बेनती करांगा, क्योंकि असी गुरु दे चाकर हाँ। तो साडा जे असी तुहानूं सुचेत ना किया तो साडी देनदारी होएगी। सानू गुरु साहब कहते हैं तुसी देखो असी बजाजी हाँ। कपड़ा जिहड़ा हुंदा ना, जिस तरह बजाज दुकान ते कपड़ा तुसी लैन जाते हो, असी तो तुसी भावें 2 मीटर या 4 मीटर सूट लैना है मेरे कोलों, मैं बजाज का काम करना, तो तुसी मेरे को 50 सूट खलवा लेने। जान में तुसी मेरे को सूट नहीं लिया क्योंकि तुहानूं पसंद नहीं आया, तुसी चले गए। पर सानू महापुरख कहते सन उस बजाजी नूं गुस्सा नहीं करना चाहिए। उन्हें तो अपनी आइटम दिखा दित्तियां ने, बई भैन जी यह भी सूट दे, यह भी सूट दे, यह भी सूट दे। वो भैन जी कहती सानू पसंद नहीं है, तो फॉर भुल जाओ, कोई गल नहीं, गुस्सा नहीं करना, क्योंकि वो गाहक है। असी भी गुरु दीयां गल्लां तुहानूं दस रहे हैं। जिहड़ा एक्सैप्ट कर लेगा चंगा है, जिहड़ा नहीं करांगे सानू गुस्सा नहीं होएगा। कर लोगे तो अपना भला, जे नहीं करोगे तो साडी झोली च पा देना। मैं तो गल वो कर रहा जिहड़ी गुरु साहब मेरे को कढ़वा रहे हैं। ये गल्लां तुहानूं किते लिखत च नहीं मिलणगियां। ये मैं प्रैक्टिकल, मैं एक्चुअली जीवन के अंदर प्रैक्टिकली गल करना चाहना वा। तो महाराज पता इत्थे की कह रहे हैं? महाराज कह रहे हैं मोबाइल ते पाठ बिल्कुल नहीं करना। और एक गल होर भी देखो सामने आई है, मैं कोई सोच के नहीं हस बैठा। जेड़ा वीर प्रसाद वरतांदा है, ध्यान देना हुण एक गल ते, क्योंकि असीं चीज़ां वेखने आ। मैं डीपली जान की कोशिश करना। जिसने खास तौर पर रिंग पाई होंदी है ना, वो कदी प्रसाद ना वरताए, या रिंग उतार के देखो। उही रिंग असी वाशरूम में जाने, टॉयलेट जाने, हथ भी, मैं कहने वाली गल नहीं, हथ भी साढ़े गंदे होंदे ने, भावें असी वाश करने साबुन नाल या होर कोई तरीके नाल। बट जे प्रसाद वरतान वाले नूं ये भी ध्यान रखना है कि हाथ विच रिंग ना हो। दास भी पांदा सी सोना, ये नहीं कि महाराज नहीं पांदे सी। साडे नाम जपण वाले मेरे मासी जी सी। गल देखो चलीए तो मैं नाल तां दस रहा। तो जदों एक जगह ते दास खड़ा होकर अनाउंसमेंट कर रहे सी, 20-22 साल पुरानी गल है। वो वसंत कुंज रहिंदे ने, बहुत किरपा महाराज दी मेरी मासी ते जद मैं हाथ करके इशारा करके इस तरह गल की तो मैं एक रिंग पाई सी, कड़ा पाया सी। जदों मैं स्टेज तो उतरिया तो मेरी मासी कहती है चरणजीत मैनूं गल चंगी नहीं लगी।
होए गुरु दा प्यारा ते एक की तुसी मुंदरियां ते कड़े पा के की कथा विचारां करदे हो। ये शोशेबंदियां तुहाडे वर्गियां नूं नहीं चंगियां लगदियां। देखो उन्हां दा प्यार सी। मैं क्या जी देखो हुण मैं इंसान हाँ तो मैं दलील देती, मैं अपने वालों कुछ पर्दा पाने की कीती, मैं हार नहीं मन्नी, समझो मेरी आदत है, इंसान की फितरत है। मैं क्या आंटी जी समझे नहीं, ये असी तां पाइयां ने, गोल्ड मैं तां पाया कि कदी ना कदी कोई ऐसा समा बन जाए तो एमरजेंसी काम आ जाएगा। तो मनु मासी पता की कहती है, कहती चरणजीत तैनूं हले गुरु ते भरोसा ही नहीं है। देखो गल छोटी सी, पर मैं उस दिन तो बाद क्या, मैं क्या वो चीज़ नहीं पानी जिन्हों वेख के मेरे अंदर हंकार जग पे। देखो यह भी हंकार है। तुसी नवा सूट किसी लेडीज़ ने पाया हो ना महंगे वाला, उस दिन वो जमीन ते नहीं होएगी, मैं खिमा कर देना, उसका ध्यान ये होएगा कि मेरे वाल किन्ने बंदे देख रहे हैं, भावें गुरुद्वारे जा रही है तो भावें पार्टी ते जा रही है। ये बहुत वड्डी गल है, ये मैटर बहुत अगे जाएगा। तो मैं जिक्र कर रहा सी मोबाइल तो पाठ नहीं करना, किसी वीर भैन ने रिंग पाई है ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्रसाद ना वरताए। हो सकता मेरिया गल्लां तुहानूं चंगियां ना लगन, पर मैं तुहानूं प्रैक्टिकली लाइफ दे विच लियाना चाहुंदा हाँ, ताकि सुचेत, मेरा काम है सुचेत करना। देखो मेरा काम वो नहीं है कि मैं डरा नहीं रहा। देखो बाणी डरांदी नहीं, बाणी सुचेत करती है। तो असी ना रिंग पा के पाठ वाहिगुरू, ना असी प्रसाद वरताउणा है, तो ना असी मोबाइल तो पाठ करना है। तो हुण असी आ जाइए, बहुत सवाल ये भी आते हैं कि मध विच आ जाता है तो की करिए। नोट कर लो, गुरु ग्रंथ साहिब का कोई भी पाठ कर रहा है, सहज पाठ, अखंड पाठ साहिब, कोई भी मध की मर्यादा नहीं जी। ध्यान दे देना मेरी गल का, कित्थे भी रहत मर्यादा विच कित्थे भी नहीं मध हैगा। ये तो मैं कहना नहीं चाहिए। चलो असी आपस में बैठे हाँ, कईयां ने अपनी समझ लो रोजी रोटी चलाने वास्ते जी, चलो ऐसे बहाने ग्रंथी सिंघा का या वैसे करो अरदास, वो कहते चलो ऐसे बहाने अरदास कराएंगे कुछ माया भी आएगी। मध तो भाव होंदा है कि विचकार, ते 1430 अंक ने, तो 715 ते 705 ते फिर शब्द आ गया जी, जयश्री महला पंजवां, आद पूरण मद पूरण अंत पूरण परमेश्वर है, सिमरंत संत सरबत रमणं नानक अगनासे जगदीश्वर है। असी कहने भाई साहब बस बस हो गया, शुरू करो पाठ। नहीं, कोई मद नहीं जे, ये तो परमात्मा वास्ते आया है। वो परमात्मा आद तो पूर्ण है, मद तो पूर्ण है और अंत तक पूर्ण ही रहेगा। जेड़ा इस संत महापुरुष नाम जपण वाला, इस जगदीश्वर जगत का ईश्वर जेड़ा इसनूं जपेगा, ਉਹਦੇ सारे पाप नाश हो जाएंगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दसो मद वाली ਕਿਹੜੀ गल आ गई। इस परमात्मा विश्लेषण, परमात्मा ही कारक है, परमात्मा ही करता है। ਉਹੀ आद तो सी, जदों सृष्टि नहीं भी सी, अरबद नरबद धंधू कारा, धरन न गगना हुक्म अपारा, ना दिन रैन ना चंद ना सूरज, सुन समाध लगाएंदा। उदों सुध समाधि लगा के वो बैठा सी, जदों कुछ भी नहीं सी, वो तदों भी पूर्ण सी, जदों धरती सृष्ट साजी तद भी पूर्ण है, हुण भी पूर्ण है भी होसी नानक, है भी सच नानक होसी भी सच। वो अगों भी सच ही रहेगा, पूर्ण रहेगा, सदा रहेगा। असी मर खप जावांगे, असी आंदे रवांगे, जांदे रवांगे, पर परमात्मा एवरी टाइम वो सलामत है। तू सदा सलामत निरंकार, गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं। तो इस करके कोई मद की मर्यादा नहीं जे। हाँ तुसी पाठ रखिया अखंड पाठ साहब, सवेरे उठो पाठ करो, महाराज अगे अरदास करो, देग कराओ, आनंद साहब का पाठ करके अरदास करो। फिर जो शब्द चल रहा भाई साहब या जोड़ा भी पार्टी सिंह रोल निभा रहा है, वो तुहानूं शब्द सरवण करवा देगा। ये मद वाली सवेरे शाम करो। घर विच रब भला करे जे लंगर बन रहा है, उस वेले लंगर भी तुसी लिया के बाबा जी की हजूरी विच रखो। तो भोग नहीं कहना, यह भी मैनूं, क्योंकि भोग असी प्रवान कहना है, जो काल तक की मर्यादा है। हाँ भोग उदों सी जदों गुरु साहब 10 जामियां दे विच सन। गुरु नानक पातशाह तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज 239 साल
उस वेले जब गुरु संगतां दे घरां च गए, तुसीं भावें परौंठे भी खुआओ उन्हां नूं, वो भोग लगन वाली गल है। पर जदों गुरु शब्द दे विच प्रवेश कर गया, देह नूं छड्ड के शब्द विच आ गया, क्योंकि सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे, जो प्रभु को मिल बो चह खोज शब्द में ले। असीं हुण शब्द नूं ते शब्द कदी भोग नहीं लगाएगा। मनु खिमा कर देना, हो सकता है मेरी इस गल नूं कईयां नूं दिली करके लगे, पर मैं शब्द गुरु की गल कर रहा, मैं शब्द का पुजारी हाँ, तो मैं शब्द कभी भी नहीं, शब्द खा लेगा कुछ दसो, शब्द नूं प्रवान कराना है। सतगुर तुहाडे चरनां दे विच सेवक परिवार वालों पंच अमृत कड़ा प्रसाद की देग हाज़र है, आप जी दर ते प्रवान करो। शब्द पढ़ो भावें, लेकिन प्रवान करो, भोग नहीं। तुसी हरमंदर साहब की मर्यादा देखो, कभी भोग नहीं कहणगे, प्रवान करो देग प्रसाद। ये मैं अपने कोलों कुछ नहीं कह रहा। सो असी एक गल का भी है भी समझने की कोशिश की है, किसी ने कोई दास की कोई भी गल चंगी ना लगे ना, तो गुस्सा ना करना। मैं इस गल तो विचार है मेरे मैं जो गल है अकाल तख्त की मर्यादा अनुसार कर रहा हाँ। अगर आप कोई भी तुहानू किसी को कोई लगती है, तो आप अकाल तख्त तो आप अपनी गल नूं कन्फर्म कर सकते हो। सो अगला जिहड़ा पॉइंट है, देखो यह गल मैं 5-7 मिनट ला के समाप्ति करांगा। ये भी सवाल बड़े आते हैं। देखो धर्म की दुनिया दे विच गुरु साहब कहते हैं 4 पाप ने जिन्हों अपवित्र मनिया गया है। एक पाप जे मन का, यह आसा दी वार दे चों मैं पंक्ति लई है। एक पाप जे जेवा का, एक पाप जे अखां का, एक पाप जे कन्ना का। किन्ने हो गए? 4। ये धर्म की दुनिया में गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहते हैं बंदे दे 4 पाप ने, जिदे राही इन्हां इंद्रियां राही पाप करके ते ये जमपुरी जाता है। जमपुरी समझते हैं ना, भाव कि जमा दे वस आंदा है। वो केड़े ने? मन का सूतक लोभ है। देखो मन का सूतक, सूतक हुंदा अपवित्र पिटिया होया, जिन्हों पिटना कहते ना बई यह पिटिया होया है। सनातन धर्म ही इहनूं कहंदे ने बई यह पिट गया। की कहंदे ने महाराज? मन का सूतक लोभ है। मन का जिहड़ा सूतक है ना, मन की अपवित्रता, वो लोभ है। वो दिन रात लोभ हो राज है, हो राज है। सैस कटे लाख कोट तावे। एक जगह ते गुरु नानक पैसा कहते, एक स्वान दोए स्वानी नाल भलके भौंके सदा ब्याल। कूड़ छुड़ा मुठा मुरदार धानक रूप रहा करतार। कहने सवेर होंदी है, 2 कुत्तियां, एक स्वान, दोए स्वानी, एक कुत्ता ते 2 कुत्तियां साडे नाल लग जांदियां ने। आशा ते तृष्णा ते एक लोभ, ये कुत्तियां साडे सवेरे उठदियां ही ना साडे अंदर भौंकन लग पैंदियां ने। भौंके आ गए सदा ब्याल। ये उठदियां सारी सानू मंगदियां ने। जिस तरह सानू पेट की भुख होवे ना, भुख होवे यह चीज़ चाहिदी है, तो इस तरह की हुंदा है, ये भी साडियां 2 आशा ते तृष्णा दियां कि अज यह खाना है, अज ये कोलों एवें एवें असी ठगी मार के लियानी है। सवेर हुंदी है ना, साडे अंदर यह विचार चल पैंदे ने। जिहड़े काम करदे ना, जिहड़े लालची बिरती होंदी है ना, वो कहंदे हुण किहदा गला वड्ढना है। किस तरह? महाराज कहंदे ने एक स्वान, एक कुत्ता ते 2 कुत्तियां, आशा ते तृष्णा, एक लोभ, एक मिल के ही करदियां ने। ये साडू सवेर तो ही मन दे अंदर विचार ले आंदियां ने। जेवा सूतक कूड़, जेवा सूतक कूत, ते जिहड़ी जबान है ओहदी ते गल ही छोड़ो, वो भी अपवित्र हो जाती है। कूड़ बोल बोल के, झूठ बोल बोल के। हाँ जी भाई साहब घर ने? नहीं जी, वो तो कम गए हुए है घर ही ने। कूड़ बोल मुर्दार खाए। महाराज कहते जो झूठ बोलता है ना, मुर्दा खा रहा। अवरी नूं समझाउण जाए, ये दूजा पाप हो गया। अखी सूतक वेखना, अखां दे नाल अपवित्रता वेखनी। पर त्रै पर धन रूप, पराया धन ते पराया धन वेख के
ये भी अंदर सूतक है। कन्नी सूतक कन पै लाए तबारी खाए। लाए तबारी होंदी है चुगलियां निंदा, कन नूं बड़ा चंगा लगता है, दूजे की निंदा ते अपनी प्रशंसा बड़ा मज़ा आता है। बिठाई रखो किसी की निंदा हो रही हो, फिर तो वाह वाह, फिर तो समय का पता ही नहीं लगता। महाराज कहते ने चारों की ने, नानक हंसा आदमी, बंदा हंस बनया होया है कि मेरे वर्गा चंगा आदमी कोई नहीं, पर चारों पाप उहदे अंदर ने। नानक हंसा आदमी बद्धे जमपुर जाए, इन्हां कर्मां करके बधिया होया बंदा जमपुर चला जाता है। ये शब्द मैं पता क्यों मैं जिक्र किया है, ये उन्हां दा जिक्र है। गुरु नानक पातशाह कहते हैं जिहड़े भिट गए ने, भिटे हुए ने। देखो अज भी ना किसी के घर मौत हो जाए ना, लोग 10-15 दिन वो घर भिटिया समझते हैं, सूतक समझते हैं, अपवित्र समझते हैं, बई ये घर असी कुछ खाना नहीं है। पर गुरु नानक पातशाह ने महाराज ने कहा, जो सूतक ने उन्हों की डिटेल है, असी वहमां च पे हुए हैं, असी वहमां च पे हैं। घर डैथ हो गई किसी ने, देखो मैं अपनी गल कर रहा, साडे मदर की डैथ हुई, मेरा ब्रदर बाहर सी, 3 दिन उन्हें आना नहीं सी, ते बॉडी साड़ी मामा मदर की घर ही सी। हुण कोई आवे जी चाह चाहिए, किवें चाहिए जी, मैं लिया रहा साड़ी कुड़मां की रोटी, मैं क्या नहीं, घर बॉडी पई है, चाह भी घर बनी है, रोटी भी घर बनी है। अपवित्र किस तरह होगी मेरी माँ, जे सारी उम्र मैं उहदे नाल रहा वां, अज पड़ोसी क्यों देणगे मैनूं चाह? जे मैं 4 दिन बाद भी तो मेरे घर उत्थे रोटी बननी है ना। कुछ भरमा तो असी निकली है। बच्चे का जन्म होया, माँ ने जन्म दिता, 10 दिन वो भिटी गई है, वो सूतक है नहीं? साध संगत सूतक नहीं जे। बच्चे नूं तुसीं स्वीकार कर लिया, बच्चा सूतक नहीं है। जिन्हें उन्हें बच्चा जम के 10 महीने 9 महीने अपनी पेट च रख के, 10वीं मासी 10 मास तो बाद उन्हें दर्दां लैके अपनी जान नूं खतरा पा के बच्चे नूं जन्म दिता, ते उहनूं भिटी गई है 10 दिन वास्ते, बई इहनूं इहदे कोल नहीं जाना, 10 दिन दूर रहना है। बच्चे नूं असीं समझ लिया बई हाँ, जिस माँ ने बच्चा दिता, भंड जम्मी है, भंड निमी है, भंड मंगण विआओ, भंडो होवे दोस्ती, भंडो चले राह, भंड मूआ भंड भालीए, भंड होवे बंदान। मारे कहंदे सो क्यों मंदा आखी, जित जम्मे राजान, भंडो ही भंड उपजे, भंडे बाज ना कोय, नानक भंडे बारा एको सच्चा सोए, जित मुख सदा सलाइए, भागा रत्ती चार, नानक ते मुख उजले ते सच्चे दरबार। अरे जिस भंड तो तू पैदा होया है, जिहदे नाल तू निमिया अंदर, तू पैदा होके अंदर तेरा शंगारिया गया है, उहदे नाल विआहिया गया है, उस भंड नूं तू अपवित्र कह रहा है। वो पवित्र कित्थों हो गई? देखो कई बारी कईयां दे सवाल भी हुंदे ने, ये कुदरती खेड है, ये कुदरती नियम ने, नियम नहीं असीं बदल सकते। हुण मैं कहना नहीं चाहिए, पर चलो गल सामने में, भैन मेरिया मातावां बैठियां ने, बच्चियां बैठियां ने, आंदा जीवन दे विच हर महीने मेरी भैन माता दे बई 4-5 दिन असी कई परिवारों में यह भी सोचण विच सुनन विच आंदा है कि वो 4-5 दिन तुसी महाराज दे चरनी नहीं लगना। नहीं नहीं साध संगत, कोई ऐसे मन विच ख्याल ना लियाओ, क्यों 4-5 दिन रोटी नहीं खानी असी, क्यों उस दिन असी 5 दिन पाठ नहीं करना? वो 4-5 दिन कैसे ने? वो परमात्मा दे वल्लों कुदरती क्रिया है, ये परमात्मा वल्लों मिली है। जे चीज़ ना होंदी, संसार की उत्पत्ति ना होंदी। मैं ज़्यादा डिटेल च ना जावां, मैं सिर्फ इशारा मात्र गल कर रहा कि भाई जे औरत कदी भिटी नहीं जाती, गुरु साहब ने दर्जा बराबर का दिता है। ये 4 जिहड़े भगत आए सी, उन्होंने एक ने औरत ही तो भंडी सी, किसी ने होमे की गल की सी, किसी ने जन्म मरण नूं कहा सी, किसी ने चुप रहने वास्ते कहा सी, एक भगत ने कहा सी औरत जात ही ऐसी है। तो गुरु साहब ने कहा, ओए औरत तो तू पैदा होया, तू किहड़े रस्सियों आया है? जो तू ब्राह्मणी ब्राह्मण जाया, तो आन बाट काय नहीं आया, तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, हम कत लहू तुम कत दूध। को कबीर जो ब्रह्म विचारे सो ब्राह्मण कहिए तो हमारे। अरे तू कोई दूजे रस्ते तो आया, तू भी रब दा पैदा है, तू भी उत्थों आया, जिन्हों क्यों भंड रहे हो? तो गुरु साहब ने वास्ते
ऐसे दिनों विच भी आप गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। वो दिनों विच भी तुसी प्रसाद वरता भी सकते हो, पंज प्यारियां की सेवा भी कर सकते हो, तुसी कीर्तन भी कर सकते हो संगत विच बैठ के। गुरु साहब ने कदी नहीं कहा पिटिया सूतक है। हाँ, सूतक उदों में जदों निंदा करेगा, भावें वो लेडीज है तो भावें वो जेंट्स है। मैं गल नूं तां इहनूं खोलिया कि कईयां दे सवाल हुंदे ने पर वो पुछ नहीं पाणगियां भैणां मातावां, लेकिन यह हुंदा कि जदों साझा उपदेश हुंदा है ना, उहदे विच सब दा भला हो जांदा है। असीं किसे भरम विच नहीं पैणा। बाणी पढ़न वकत कदी भरम ना रखो। बाणी हमेशा, बाणी ते भरम दूर करदी है, असीं भरमां च बाणी नूं भी भरमां च पा दित्ता है। तो दास इत्थों होर अगे जो जो पॉइंट आएंगे असीं सांझ करांगे। समय की इजाजत बहुत ज़्यादा हो गया है, सो मैं यही बेनती करांगा कि अज जो जो विचारिया है महाराज ने किरपा नाल रिकॉर्डिंग हुई है, आप सरवण कर लेना। जे कुछ डाउट्स कुछ अजे भी कोई रह गए ने किसी के मन के प्रति, वो कल परसों जो वीर जी का हुक्म होएगा असी मिल बैठ के होवे इकत्तर मिलो मेरे भाई दुविधा दूर करो लिव लाए। असी बैठ के दुविधावां नूं दूर करांगे। किसी शंका भरम दे विच ना बाणी असी पढ़नी है तो ना असी कोई गल करनी है। असी बाणी छड्डनी नहीं। गुरु अमरदास के पातशाह कहते हैं कहे नानक सदा गावो। तो फिर सदा के अंदर असी क्यों दिन चुन ले कि लेडीज़ 4 दिन नहीं कर सकती, 5 दिन नहीं। लेडीज़ हर वेले कर सकती है। लेडीज़ नूं बड़ा उच्चा दर्जा दिता है गुरु साहब ने। माता गुजरी वर्गे, बीबी भाणी वर्गे हैं, बीबी वीरो वर्गे, माता सुलखणी, माता तृप्ता, ये जेड़े गुरपुरब मना रहे हैं, माता गंगा जी, बेबे नानकी जी, तुसी किनू पिटन की गल कर रहे हो? औरत जात नूं बराबर दा। तुसी कई धर्मां च चले जाओ, उन्हां दे धार्मिक स्थानां ते लेडीज़ नहीं जा सकती, पर गुरु साहब ने तुहाडी इन्ना मान दिता। प्रिंस कोर क्या है, तुहानूं एक दर्जा ऐसा दिता है जिहड़ा किसी भी संसार दे विच लेडीज़ नूं ऐसा दर्जा किसी नूं नहीं मिलिया। तुहानूं ते प्रिंस पहला ही बना के भेज दिता है। महाराज कहंदे मेरी बच्ची कोर प्रिंस है, वो राणी है। देखो तुहानूं जन्मांतरों ही हम तनमन पागड़ सच नाए, हर गुण गावें सहज सुभाए। वो सानू तनवंते भागां वाला बचपन तो ही बना के भेज दिता है। तो असी कुछ चंद कुछ अंध विश्वासियां ने सानू की किया है, सानू भंड दिता कि भाई तू औरत यह काम नहीं करना, यह काम नहीं। गुरु साहब कहते हैं जिहड़ा काम जेंट्स कर सकता है वो सिखनी भी करेगी मेरी। सो ऐसे दीन दयाल सतगुर रहमत करन। आस है कि काफ़ी असी गल्लां सांझ कर लिया ने। जे कोई भी रह गई होवे ते आने वाले समय असी सांझ कर लवांगे। बाकी दास कोलों भुल्लां बड़ियां होईयां ने, क्योंकि कई बारी गुरु दे प्यार विच कोई गल किसी नूं लग गई होवे ते ओह झोली विच पा देना। जे चंगी लगे तो हिरदे च वसा के, मैं अरोड़ा वीर जी की हमेशा गल सामने आती है, उसनूं अमली जामन पलवा लो बस। जे तो सुनिया तो जे कल तो उही रूटीन चल रही है, उही गलतियां चल रही ने, तो भावें 100 गेड़ा आवो जाओ, भावें तुसी आंदे रहो जांदे रहो, गड्डी उत्थे ही खड़ी रहेगी, बदलाव कोई आएगा नहीं, ना अंदर सहज आएगा तो ना ये चीज़ां बननगियां। ये तद बननगियां जब मैं अपने आप नूं, मैं जो तुहानूं दस रहा मैं अपने आप वास्ते कह रहा, उन्होंने एनालिसिस करिए, फिर उहदे उत्ते चलण का यतन करिए, तो तां कहानी बनेगी, गल बनेगी। अदरवाइज तो फिर उत्थे ही खड़े हाँ। सो भुल्लां गलतियां दी खिमा। सारी गुरु प्यार वाली संगत, रब रूपी संगत का धन्नवाद है जो वीर जी समा दिंदे ने ते असीं बोलण वास्ते तुहाडे सामने आ जाने आ। तो महाराज अरदास करना दास कूकर दी भी गुरु साहब दे रोगता दी दात बख्शण। जितने भी लगते ने स्वास घट ही ने, पर चलो जिन्ने भी दिते ने गुरु ने, असीं चाहते हैं वध तो वध गुरु दी प्रचार असीं करके जाइए। इतनी सेवा प्रवान करनी। वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।